बुलेटिन में खुशामदीद। भारतीय एयर मार्शल ने पाक फजाइया के हाथों राफेल गिराए जाने का एतराफ कर लिया। न्यूज ब्रीफिंग में सहाफी ने सवाल किया, पाकिस्तान दावा कर रहा है राफेल गिराए हैं, क्या आप तस्दीक करेंगे? एयर मार्शल AK भारती ने कहा, जंग में नुकसान तो होते हैं, राफेल गिराने की खुली तस्दीक कर दूं तो फायदा पाकिस्तान को होगा। भारतीय मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान 5 रोज बाद भी तैयारी के बगैर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। सहाफियों के सवालात पर आएं बाएं शाएं करते रहे। हर सवाल पर एक दूसरे की तरफ देखते कि जवाब कौन देगा। पाकिस्तान के कितने तैयारे गिराए, इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया। कहा उन्हें पता है लेकिन बताएंगे नहीं। Can you give a number of assets we lost? Because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been down. I guess that question is for me. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? If I comment on anything, it will only be advantage adversary. You want to know how many of their planes we have downed? Their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time. पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के 5 तैयारे तबाह किए। DGISPR ने 9 मई को बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दाचा किया। कहा 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया और भारतीय तैयारों में तारीख का तवील मार्का हुआ। भारत ने रिवायती हट धर्मी की झूठ का सहारा लेते हुए तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। शवाहिद में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। It's very strange that the Indians are saying that we have not lost any aircraft. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. As you have seen the evidence, I'll just show you what their own media Anupam says is telling. Srinagar Civil Airport, civil traffic has been shut at Srinagar Airport, and right now I'm in Pampur. Now, fighter jet that has crashed in this particular location. Remains of this jet are scattered in a large area. 3 such incidents have happened across Jammu and Kashmir at 3 locations. हम इस वक्त इंडिया के ज़ेर-ए-इंतज़ाम कश्मीर के पुलवामा जिले में हैं और ये वियन उसी पुलवामा जिले के पांपोर कस्बे का एक इलाका है। यहाँ पर रात के दौरान मकामी लोगों ने एक धमाके की आवाज सुनी, जिससे वो बाहर आए और उन्होंने देखा कि कुछ चीज जल रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें यकीन है कि वो एक जेट तैयारा है जो गिरकर तबाह हो गया है। ऐसा ही एक धमाका जम्मू के रामबन इलाके में भी हुआ है। At that time they saying that we know that in Jammu and Kashmir and the kills were 5. Now this is one of the crash site or one debris of one crash site. You can see that very clearly. These are aircraft. This is yet another debris of another place. This is, you can see the tail number of one of the Rafale. You can see it clearly that is lying. That tail, which was at one time was on an aircraft, is now on ground, detached. This engine was one part of one Rafale at one time, now it is on ground burning. Indians may say that we have not lost everything, but fortunately I think for the world we are living in 21st century. It is not 18th century. Everything leaves a mark. पाकिस्तान ने राफेल समेत भारत के 5 तैयारे तबाह किए। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती कहते हैं, भारतीय फजाइया के अफसर छुपाने की लाख कोशिश करें लेकिन अब छुपाना मुमकिन नहीं। ये नहीं कर रहे कि आप राफेल कंपनी को तो प्रेशराइज कर सकते हैं क्योंकि आप उनकी 3-4 दिहाइयों से क्लाइंट है, लेकिन एक और कंपनी भी है जिसका जिक्र होना चाहिए और वो है मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट कंपनी। ये यूके की है और ये सीटें बनाती है पूरी दुनिया में। वो अपनी वेबसाइट पर क्लॉक की तरह अपडेट करते हैं कि वी हैव सेव्ड नॉट 7,866, वी हैव सेव्ड 7,867 लाइव्स टुडे। उन्होंने क्यों 3 का जंप लगाया अगले दिन? अब आपको ये इंडिकेटर मैं ये दे रहा हूं तो 3 ही इसका मतलब हमने क्रैश किया? नो, पायलट जमीन में सीट समेत चला जाए यानी क्रैश कर जाए और इजेक्ट ना करे तो मार्टिन बेकर अपनी सीट का क्लेम नहीं करती। और अब आपको दिखाते हैं वो तारीखी मनाजिर जब पाक फजाइया ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के मरकजी ऑपरेशन रूम में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर अपनी कोर टीम के साथ मौजूद रहे। सर्विलेंस और जवाबी हमले ऑपरेशन रूम से मॉनिटर होते रहे। पाक फजाइया ने 3 राफेल समेत भारत के 5 तैयारे मार गिराए।
पाकिस्तान ने आदमपुर में भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी नीस्तो नाबूद कर दिया। भारत के खिलाफ 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के हीरो फख्रे पाकिस्तान एयर कमोडोर नुमान अली खान भी एयर चीफ के साथ मौजूद थे। के पासदार हम, मिसाल जुल्फ़िकार हम, बना के शाहकार हम, वतन पे जानिसार हम। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमेरिका के सदर ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को बेहतरीन शिराकतदार मिल गया। उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया और कहा, जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर ट्रंप की पेशकश को सराहते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका दिहाइयों से एक दूसरे के शिराकतदार हैं। उम्मीद है दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान और अमेरिका ने हमेशा आलमी अमन के लिए काम किया। दोनों मुल्क मुश्तरका मफाद को फरोग और उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक हो गए। सोशल मीडिया पर लिखा, वो पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, मसला कश्मीर का हल निकालेंगे। पाक भारत क़यादत पर फख्र, तिजारत बढ़ाने जा रहा हूं। पाक भारत क़यादत ने दानिशमंदी, बसीरत से सूरत हाल समझी। पिछले चंद रोज जो गुजरे हैं, मामलात का जो इख्तिताम हुआ है, पाकिस्तान के लिए बरकत लाया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, भारत से जब भी बात होगी सिंतास मुआहिदा और दहशतगर्दी अहम मामलात होंगे। शहर में खैर बरकत भी निकल आती है। 3-4 दिन हुए हैं और खुसूसन इसका जो इख्तिताम जिस तरह हुआ है, पाकिस्तान के लिए बायस बरकत ही बना है। प्रेसिडेंट US ट्रम्प चाहते हैं कि जहाँ भी दुनिया में फ्लैश पॉइंट्स हैं, कोई ना कोई वो रोल अदा करें। ईरान के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, यूक्रेन के मसले के ऊपर भी हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी साइज़मिक एक चेंजेस आ रही हैं इस खित्ते के अंदर। मिलिट्री के लिहाज से भी, डिप्लोमेसी के लिहाज से भी, जब भी हमारी उनसे बात शुरू होती है 3 चीजें होंगी। उसमें IWT है, सिंतास मुआहिदा है, उसके बाद जो है दहशतगर्दी है। और अब कुछ बात मौसम की। लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, लाहौर में जालाबारी भी हुई। गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद में बादल बरसे, मौसम सुहाना हो गया। बटग्राम में तेज बारिश के बाद नदी नालों में तोक़यानी, कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। वजीराबाद में बारिश के साथ जालाबारी हुई। शेखुपुरा में भी बादल छा गए, तेज हवाएं चल पड़ी। नारोवाल में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। चिन्योट, गुजरात, खुशाब, जौहराबाद, फारूकाबाद और दीगर शहरों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा और दीगर शहरों में यौम तशक्कुक पर रैलियां निकाली गईं। पुरजोश शहरियों ने मुसल्लह अफवाज से यकजहती का इजहार किया। पेशावर से कला बाला हिसार के बाहर जमा होने वालों ने रिवायती रक्स पेश किया। पेशावर में सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। कला बाला हिसार पर रैली का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। अदनान तारिक मजीद बता रहे हैं। जिंदाबाद रैलियां निकाली जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली जो है मुख्तलिफ शहरों से होते हुए किला बाला हिसार पर जो जश्न का समा है, खटक रक्स जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ मज़ाहिब की जानिब से नुमाइंदे भी यहाँ पर शरीक है। बेशक हमारी माओं, बहनों, बेटियों की और शहीदों की खास तौर पर माओं की दुआएं जो हैं वो रंग ले आई हैं। पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला का ये इनाम वतन अजीज पुरअमन पाकिस्तान वो मुबारक हो। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो है उन पे अटैक की। हमने जो कुछ किया अपने दिफा के लिए किया, तो मैं आज पूरे कौम को अपनी तरफ से जो है पाक फिज़ाया को सलाम पेश करता हूँ। डिफेंस ही नहीं किया बल्कि दुश्मन के दांत भी खटे किए और उनके घर में जाके उन्हें ये सबक भी दे के आए हैं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखना। अपने अफवाज के लिए दुआ गो हैं कि खुदा इसी तरह इनको सलामती में रखे। मुख्तलिफ मकामात पे पेशावर में आतिशबाजी के खूबसूरत मनाजिर भी जो है वो भी पेश किए गए।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر قصور سرحد پر پنجاب رینجرز کے شہید سپاہی محمد عمران کے گھر پہنچے. گورنر پنجاب نے بسال تحصیل جنڈ میں شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور فاتحہ پڑھی. گورنر نے کہا افواج پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر قوم کو نیا جذبہ دیا. ہر سال 10 مئی کا دن افواج پاکستان کو خراج تحسین کے طور پر منایا جائے گا. خبر دیں گے آپ کو پشاور سے تھانہ چمکنی کے پولیس موبائل پر خودکش دھماکہ ہوا. 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں. پولیس کا بتانا ہے کہ دھماکے میں SI لئیک زادہ خان اور کانسٹیبل عالم زیب شہید ہوئے ہیں. آپ کو خبر دے رہے ہیں پشاور سے تھانہ چمکنی کی پولیس موبائل پر خودکش دھماکہ. 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں. HBL PSL 10 کے بقیہ میچ غیر ملکی کھلاڑیوں کے بغیر کرائے جانے کا امکان. ذرائع کا بتانا ہے اسٹار کرکٹرز کی عدم دستیابی پر فرنچائز کا انحصار ملکی کھلاڑیوں پر ہوگا. ایونٹ کے میچ لاہور اور راولپنڈی میں ہوں گے. فائنل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. فیصلہ 24 گھنٹے میں متوقع ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.